Let us start today with first law of motion. ठीक है. By observing the motion of an object on an inclined plane, Galileo deduced that objects move with constant speed when no force acts on them. He observed that when a marble rolls down an inclined plane, its velocity increases. In the next chapter, you will learn that the marble falls under the unbalanced forces of gravity as it rolls down and attains the definite velocity by the time it reaches the bottom. Its velocity decreases when it climbs up as shown in the figure 9.5b. And 9.5c shows a marble resting on an ideal frictionless plane inclined on both the sides. Galileo argued that when the marble is released from left, it would roll down the slope and go up on the opposite side to the same height from which it was released. If the inclination of the planes on both the sides are equal, then the marble will climb the same distance that it covered while rolling down. If the angle of inclination of the right side plane were gradually decreased, then the marble would travel further distances till it reaches the original height. If the right side plane were ultimately made horizontal, that is, the slope is reduced to 0, the marble would continue to travel forever, trying to reach the same height that it was released from. The unbalanced forces on the marble in this case are 0. If thus suggested that an unbalanced external force is required to change the motion of the marble, but no net force is needed to sustain the uniform motion of the marble, in practical situation it is difficult to achieve a zero unbalanced force. This is because of the presence of frictional force acting opposite to the direction of motion. Thus, in practice, the marble stops after traveling some distance. The effect of the frictional force may be minimized by using a smooth marble and a smooth plane and providing a lubricant on the top of the plane. Newton further studied Galileo's ideas on the force and motion and presented three fundamental laws that govern the motion of the object. These three laws are known as the Newton's laws of motion. The first law of motion is stated as an object remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force. In other words, all the objects resist a change in their state of motion. In a qualitative way, the tendency of undisturbed object to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia. This is why the first law of motion is also known as the law of inertia. Certain experiences that we come across while traveling in a motor car can be explained on the basis of the law of inertia, and we tend to remain at rest with respect to the seat until the driver applies a braking force to stop a motorcycle. With the application of the brakes, the car slows down, but our body tends to continue in the same state of motion because of its inertia. A sudden application of brakes may thus cause injury to us by impact or collision with the panels in front.
Safety belts are worn to prevent such accidents. Safety belts exert a force on our body to make the forward motion slower. An opposite experience is encountered when we are standing in a bus and the bus begins to move suddenly. Now we tend to fall backwards. This is because the sudden start of the bus brings motion to the bus as well as to our feet in contact with the floor of the bus, but the rest of our body opposes this motion because of its inertia. When a motor car makes a sharp turn at the high speed, we tend to get thrown to one side. This can again be explained on the basis of law of inertia. We tend to continue in our straight line motion when an unbalanced force is applied by the engine to change the direction of motion of the motor car. We slip to one side of the seat due to the inertia of our body. The fact that a body will remain at rest unless acted upon by an unbalanced force can be illustrated through the following activity. अभी न्यूटन और गैलीलियो ये लोग जब मोशन को स्टडी कर रहे थे, राइट, अगर मैं एक मार्बल लूँ, ठीक है, और दो ऐसे प्लेन लूँ ऐसे, राइट, और अगर मैं यहाँ से मार्बल को छोड़ूँ तो मार्बल क्या होगी, नीचे जाएगी, राइट, फिर ऊपर जाएगी, यहाँ से वापस नीचे आएगी, फिर ऊपर आएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर आएगी, राइट। तो ये सरफेस जो है, राइट, उनका मानना ये था कि ये अगर मैं यहाँ से छोड़ता हूँ मार्बल को तो नीचे गई, राइट, तो कितना सेंटीमीटर नीचे गई, सपोज 10 सेंटीमीटर गई, तो वो मार्बल 10 सेंटीमीटर ऊपर भी जाएगी, राइट, और वापस यहाँ से नीचे आ रही है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर ऊपर आएगी। इसका मतलब ये कंटिन्यूसली 10 सेंटीमीटर के बीच में ही ऊपर नीचे होती रहेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होता है कि यहाँ 10 सेंटीमीटर से हमने छोड़ी, तो जब ये नीचे जाके ऊपर तक आएगी तो 10 नहीं, हो सकता है 9 सेंटीमीटर तक ही जाए, राइट। जब ये 9 से यहाँ नीचे जाएगी, यहाँ ऊपर आएगी तो यहाँ पर 9 तक नहीं आएगी, 8 तक आएगी, राइट। फिर यहाँ से नीचे गई तो यहाँ पर 7 पर अटक जाएगी, यहाँ से वापस नीचे यहाँ पर आई तो यहाँ पर 6 पे अटक जाएगी। तो हर बार उसकी हाइट जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है इन रियलिटी। लेकिन एज एक्सपेक्टेड क्या था कि इसके ऊपर तो कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, राइट। तो जब कोई चीज़ के ऊपर कोई फोर्स काम, अभी सोच लो आप क्लास में मस्ती मजाक कर रहे हो, कोई है नहीं, जो सर का पीरियड था या मैम का पीरियड था वो एब्सेंट है, मान लो, आपको पता है, बाकी सब टीचर्स अपने अपने क्लास में, तो आप अपनी मस्ती में क्लास में फ्रीली रहते हैं, राइट। कब तक फ्री रहते हैं? जब तक आप दूसरों को डिस्टर्ब करोगे तो बाजू वाला कोई टीचर आएगा बाजू के क्लास में से कि भाई टीचर नहीं है तो पढ़ो बैठ के, क्यों मस्ती कर रहे हो, दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो जैसे ही वो टीचर आएगा आपकी मस्ती कम हो जाएगी, जैसे ही वो टीचर गया फिर तुम्हारी मस्ती चालू हो जाएगी। तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स जब तक आपके ऊपर एक्ट नहीं करता, आप अपनी मजाक मस्ती में पड़े रहते हो, है ना। तो कोई और टीचर आता है, वो तुम्हारे ऊपर कंट्रोल करता है, राइट, तो आप कंट्रोल में आ जाते हो और आपकी मस्ती कम हो जाती है। जब नहीं होता है कोई तो आप कंटिन्यूसली वही मस्ती मूड में पूरा पीरियड रहोगे, है ना। तो यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता है किसी चीज़ के ऊपर, तो वो चीज़ हमेशा मोशन में ही रहेगी। इसका मतलब किसी को धक्का दे दिया तो वो कंटिन्यूसली रोल होता ही जाएगा। कब तक? जब तक उसको दूसरा कोई स्टॉप ना करे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अगर धक्का दिया तो थोड़ी दूर जाके रुक जाएगा, तो थोड़ी दूर जाके रुक जाने की वजह क्या हुई? तो उसके ऊपर कोई बैलेंस्ड फोर्स है जो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। यहाँ पर होता है फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जब तक कोई चीज़ रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में नहीं आएगी, और जब वो चीज़ मोशन में आ गई तो वो कंटिन्यूसली मोशन में रहेगी, रेस्ट में नहीं आएगी जब तक उसको कोई और फोर्स रोकता नहीं, राइट। तो अगर कोई और फोर्स रोकता नहीं तो वो कंटिन्यूसली मोशन में ही रहती। आई बात समझ में? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो चीज़ आराम से बैठी है वो आराम से ही बैठी रहेगी, कब तक? जब तक कोई आके उसको धक्का ना दे दे, राइट। और जो चीज़ मोशन में है वो हमेशा मोशन में ही रहेगी जब तक कोई दूसरा फोर्स आके उसको रोक ना ले। जो क्लास के एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया है, राइट। क्या क्लास में शांत बैठे हो तो शांत ही बैठे रहोगे, राइट। जब तक आपको समझ में नहीं आता कि सर्वर आने वाले नहीं है, है ना, तो ये एक्सटर्नल फोर्स हुआ तुम्हारे ऊपर, अब मस्ती में आ गए। अब कंटिन्यूसली मस्ती में रहोगे कब तक? जब तक कोई और आके आपको डांटे नहीं, राइट। आप खुद की तरीके से तो शांति से बैठ के काम करने वालों में से नहीं है, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल लॉ है मोशन का, अंडरस्टूड। तो फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब जो चीज़ रेस्ट में है वो रेस्ट में रहती है जब तक कोई आके उसको धक्का नहीं देता, और जो चीज़ मोशन में है वो हमेशा मोशन में ही रहेगी जब तक आके उसको कोई रोक नहीं लेता, राइट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये है। अब वो समझने के, अभी जैसे आप समझो आप गाड़ी में बैठे हो, राइट, गाड़ी आपकी जा रही है स्पीड में, तो गाड़ी के साथ साथ आप भी स्पीड में ही जा रहे हो। अब जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक मारा, राइट, तो आप सीधा आगे की तरफ यूँ झुकते हैं। क्यों झुकते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी गाड़ी के साथ साथ मोशन में ही है। ड्राइवर ने ब्रेक गाड़ी को मारा, आपको ब्रेक कौन मारेगा? कोई नहीं मारेगा, है ना। तो आपकी बॉडी मोशन में आ गई थी जब तेज़ चल रही थी, तो आप भी मोशन में आ गए थे, राइट। और जैसे ही उसने ब्रेक मारा, क्योंकि आप गाड़ी में बैठे हो तो आपके मोशन को भी स्टॉप होगा, तो आप आगे की तरफ झुको। अभी जैसे समझ लो कि कोई बस चल रही है और आप उतर रहे हो, चलती हुई बस में उतरोगे तो क्या होगा ये बताओ? नहीं, आपको तैयारी रखनी पड़ेगी मेंटली। जैसे बस रुकी है और आप उतर रहे हो तो आपको दौड़ना नहीं पड़ता है उतरने के लिए, है ना, सीधा उतर गए। लेकिन बस थोड़ी सी स्पीड में चल रही है और चालू बस में या ट्रेन में आप उतर रहे हो, तो जैसे ही आपके पैर ज़मीन पे पड़ेंगे आप दौड़ना शुरू कर दोगे। थोड़ी दूर तक दौड़ते हुए जाओगे, फिर तुम अपनी मोशन स्टॉप करोगे, है ना। तो जो चलती हुई बस से उतरता है उसको थोड़ा दौड़ना पड़ता है, राइट। और जो गाड़ी जा रही है उसको पकड़ना है तो आपको उसको दौड़ना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर चढ़ जाओगे आप, है ना। तो जब चलती हुई बस में बैठे और कोई ड्राइवर ब्रेक मारता है तो आप आगे की तरफ झुकते हो, राइट। और आपको पता नहीं है, आप आराम से बैठे हो, अचानक से ड्राइवर ने चालू करके फुल स्पीड मार दी, फुल लीवर दे दिया, तो क्या होगा? आप पीछे की तरफ ऐसे हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप मोशन में नहीं थे, रेस्ट में थे, और अचानक से मोशन में आए तो आप पीछे की साइड पे, है ना। फिर धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी भी मोशन में आ गई तो आप सीधा हो गए, है ना। लेकिन जैसे ही वो फुल स्पीड लीवर करेगा तो पहले आप पीछे की तरफ ही जाओगे हमेशा, और फुल स्पीड में जब ड्राइवर ब्रेक मारेगा तो आप आगे की साइड ही झुकोगे, राइट। तो ये समझने के लिए एक एक्टिविटी है, कौन सी है? मेक ए पाइल ऑफ सिमिलर कैरम कॉइन्स ऑन ए टेबल एज शोन इन फिगर। तो कैरम की ककड़ियाँ ऐसे ही एक के ऊपर ऐसे रख लो। Attempt a sharp horizontal hit at the bottom of the pile using another carom coin or the striker. If the hit is strong enough, the bottom coin moves out quickly, and once the lowest coin is removed, the inertia of the other coins makes them fall vertically on the table. अब कैरम की ककड़ियाँ रखी है, आपने एक के ऊपर एक ऐसे रखी है, आप नीचे वाली ककड़ी को स्ट्राइकर से मारते हो, है ना। तो जैसे ही वो ककड़ी हटेगी, ऊपर की ककड़ियाँ अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगी, क्योंकि नीचे से तो बेस हट गया ना, तो नीचे गिरेगी, थोड़ा ही गिरेगी भले, लेकिन गिरेगी तो अनबैलेंस हो जाएगी और गिर जाएगी, राइट।
Set a 5 rupee coin on a stiff cardboard covering an empty glass tumbler standing on a table as shown in the figure. अभी एक नया एक्सपेरिमेंट है, right? Give the card a sharp horizontal flick with the finger, and if we do it fast, then the card shoots away, allowing the coins to fall vertically along with the glass tumbler due to its inertia. अभी ग्लास के ऊपर एक खाली ग्लास लो, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखो और उसके ऊपर एक सिक्का रखो। अभी वो कोने से ही फुल स्पीड में कार्ड को ऐसे फ्लिक करो तो क्या होगा, कार्ड जो नीचे से निकल जाएगा। अभी उसके ऊपर सिक्का था तो सिक्का भी दूर गिरना चाहिए ना, लेकिन सिक्का नहीं गिरेगा दूर जाके। सिक्का कहाँ गिरेगा, ग्लास के अंदर गिरेगा। फुल स्पीड में मारोगे तो, अगर स्लोली मारोगे कार्ड को तो कार्ड और सिक्का दोनों बाहर गिरेंगे, राइट। लेकिन अगर फुल स्पीड में मारा तो कार्ड दूर चला जाएगा लेकिन सिक्का नीचे ही गिरेगा। क्यों? क्योंकि सिक्का मोशन में नहीं है, राइट। जैसे बस स्पीड में जाती है तो आप मोशन में नहीं थे तो आप थोड़े पीछे हुए, यहाँ से उसके नीचे से कार्ड खिसक गया तो सिक्का तो रेस्ट पे ही था, आपने सिक्के को नहीं मारा, कार्ड को मारा, तो कार्ड मोशन में गया, सिक्का नीचे गया, राइट। द इनर्शिया ऑफ द कॉइन ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेट एट रेस्ट इवन व्हेन द कार्ड फ्लोज ऑफ। तो क्या बोला मैंने, जो चीज़ रेस्ट में है वो हमेशा रेस्ट में रहने की कोशिश करती है, और जो चीज़ मोशन में है वो हमेशा मोशन में रहने की कोशिश करती है। दैट इज़ लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसकी तीसरी एक एक्टिविटी है, प्लेस ए वाटर फिल्ड टम्बलर ऑन ए ट्रे एंड होल्ड द ट्रे एंड टर्न अराउंड एज फास्ट एज यू कैन। वी ऑब्जर्व दैट द वाटर स्पिल्स। वाई? ऑब्जर्व दैट द ग्लू is provided in the saucer for placing the tea cup. It prevents the cup from toppling over in case of a sudden jerk. अभी आप लोगों ने कई बार किया होगा क्लास में, ऐसा खाली ऊपर ये तो बॉटल में ढक्कन वाला ग्लास होता है भरा हुआ, है ना, भरा हुआ ग्लास होता है, उसको आप स्पीड में हाथ से यूँ उल्टा करो और फिर सीधा कर लो तो पानी बाहर नहीं छलकेगा। करते हो कभी ऐसा? एकदम स्पीड में, अभी जैसे कोई पानी का करता है, कोई इसका करके देखते हैं अपन। अभी देखो इसको, ये हाथ में ऐसे है, राइट मेरे, अगर मैं ऐसे करूं तो ये नीचे जाएगी और फिर सीधा करूं तो मेरे हाथ में नहीं आएगी, राइट। लेकिन अगर मैं उसको इतनी स्पीड से करूं, इतनी स्पीड से करूं तो ये गिरेगी नहीं। कैसे? मैंने तो हाथ उल्टा किया तो गिर जानी चाहिए ना, वो गिरी क्यों नहीं? देखना, राइट। उसका नहीं गिरने का कारण क्या था कि ये तो रेस्ट में थी, है ना, तो जो चीज़ रेस्ट में है वो हमेशा रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगी, भले ना मैंने उसको उल्टा किया, राइट। जो चीज़ मोशन में है वो मोशन में रहेगी, तो हाथ मोशन में था तो मोशन में रहा, ये चीज़ रेस्ट में थी तो रेस्ट में रही। अगर स्लोली करता तो सिर्फ इतना ही करता तो वो नीचे गिर जाती, राइट। इनर्शिया एंड मास वो क्या होता है? All the examples and activities given so far illustrates that there is a resistance offered by an object to change its state of motion. जैसे ही क्लास में मैं आता हूँ, कोई भी टीचर, मैं क्या, आप अपनी धुन में रहते हैं, है ना, और जैसे ही आता है सर तो आपको क्या होता है, अभी पढ़ना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। अगर कोई नहीं आता तो अपने ख्यालों में ड्राइंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं विचारों में, राइट। लेकिन जैसे ही सर आएंगे और बोलेंगे बुक खोलो, अब पढ़ना पड़ेगा, लेकिन दिल तुम्हारा अंदर से कहता है कि आज नहीं पढ़ना है ना, रेसिस्ट करता है। आप ईगर नहीं होते हो कि चलो अभी सर आएंगे उससे पहले बुक खोल के रखें और थोड़ा बहुत पढ़ भी लें कि ताकि सर आके सीखेंगे तो थोड़ी आसानी होगी। नहीं, तो सर आएंगे फिर आपको बोलेंगे बुक खोलो, तब आप बुक खोलोगे। इसका मतलब क्या कि हर एक चीज़ जो है ना वो चेंज को रेसिस्ट करती है ना। जैसे अब एक नया सर, मान लो एक सर है, राकेश सर आपको SST सिखा रहे हैं, अचानक से सर से मैंने वो सब्जेक्ट ले लिया, दूसरी टीचर को बोलूँ अब आपको SST वो सिखाएगी, नहीं सर हमको राकेश सर ही चाहिए,
भले वो टीचर आपको राकेश सर से अच्छा सिखाएगी, लेकिन आप पहले तो ना ही बोलोगे, नहीं सर हमको राकेश सर, मतलब आप चेंज के लिए तैयार नहीं होते हो कभी भी, है ना। कब? जब आपको पता ही नहीं है क्या है। हाँ, अगर मैं आपको बोलूँ आप मुझे 50 की नोट दो, मैं आपको 100 रुपये दूंगा, तो आप बोलोगे नहीं सर, करोगे? नहीं, आपको पता है 50 की नोट देने में फ़ायदा है, 100 की मिल रही है, तो तुरंत दे दोगे, है कि नहीं। इसका मतलब क्या, आपको आउटकम जो है वो पहले पता है, इसीलिए। बाकी वो जो आपको आउटकम पता नहीं होता है तो चेंज के लिए आप तैयार नहीं होते हो, नहीं भले कितना अच्छा पढ़ाते हो, नहीं हमको नहीं। फिर जब वो टीचर आएगी धीरे 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 एक पीरियड लेगी तो आप बोलोगे हाँ ठीक है चलो चलेगा, नेक्स्ट पीरियड में थोड़ा और मज़ा आने लगेगा, फिर बोलेगा ठीक है सर अभी चलेगा, राकेश सर रही तो ये ही सही है ना। तो रेजिस्ट करते हैं हम हर एक चीज़ को। तो रेजिस्ट करना हर एक ऑब्जेक्ट के नेचर में होता है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। तो इसका मतलब जो चीज़ पड़ी है वो पड़ी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर इनर्शिया लग रहा है, लॉ ऑफ इनर्शिया। वो चीज़ रेस्ट में ही रहना पसंद करती है, मोशन में नहीं आना चाहती। एक बार मोशन में आ गई तो कंटिन्यूसली मोशन में रहेगी जब तक उसके ऊपर दूसरा कोई फोर्स एक्ट नहीं होता है। आपको आना होगा, मुझे आना होगा, अब तो चालू था आऊँगा, फिर आपको जो बाकी है मुझे कहना, मैं आपको सिखाऊँ, ठीक है। 2 बजे तक तैयार हो जाना, हाँ 1 बजे जाना, फटाफट तैयार होकर 2 बजे में आना, टाइम वेस्ट मत करना। If at rest it tends to remain at rest, if it is moving it tends to keep moving. This property of an object is called its inertia. Inertia क्या होता है कि जो चीज़ रुकी है वो रुकी रहेगी और जो चीज़ चल रही है वो चलती रहेगी, right? Do all the bodies have the same inertia? We know that it is easier to push an empty box than a box full of books. Similarly, if we kick a football, it flies away. But if we kick a stone of the same size with equal force, it hardly moves. We may in fact get an injury in our foot while doing so. Similarly, in activity 9.2, instead of a 5 rupee coin, if we use a 1 rupee coin, we find that lesser force is required to perform this activity. A force that is just enough to cause a small cart to pick up a large velocity will produce a negligible change in the motion of a train. This is because in comparison to the cart, the train has a much lesser tendency to change its state of motion. Accordingly, we see that train has more inertia than the cart. Clearly, heavier or more massive objects offer large inertia. Quantitatively, the inertia of an object is measured by its mass. We may thus relate inertia and mass as follows. Inertia is the natural tendency of an object to resist a change in its state of motion or of rest. The mass of an object is a measure of its inertia. अभी कोई भारी चीज़ है और एक खाली बॉक्स है, दोनों सेम साइज़ के बॉक्स रखे हैं मैंने, 2 सेम साइज़ के बॉक्स है, एक में मैंने मिट्टी भर के रखी है और एक में मैंने थर्मोकोल के बॉल भरे रखे हैं और फुल भरे हुए हैं, राइट। अभी बॉक्स में जगह तो है नहीं, फुल थर्मोकोल के बॉल्स भर दिए और एक में मिट्टी भरी पड़ी है, उसमें भी अब जगह नहीं है। अभी मैं लात मारूंगा तो कौन सा बॉक्स दूर जाएगा? थर्मोकोल वाला। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वज़न नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ मोशन में नहीं है, रेस्ट में है, वो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है, राइट। कब तक? जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। तो मेरे को एक्सटर्नल फोर्स
किस में ज़्यादा लगाना पड़ेगा, रेत के बॉक्स को लात मारने में कि थर्मोकोल के बॉक्स को लात मारने में? मतलब इसमें वज़न ज़्यादा है तो मुझे ज़्यादा शक्ति लगानी पड़ेगी इसको मोशन में लाने के लिए। अंडरस्टूड? उसी तरह जो हैवी चीज़ मोशन में है उसको रोकना है मुझे, तब भी मुझे ज़्यादा ताकत लगानी पड़ी क्योंकि ये हैवी चीज़ मूव हो रही है, उसको रोकना है, राइट। और जो हल्की चीज़ है वो मूव हो रही है, उसको रोकना है तो मुझे कम ताकत लगानी पड़ेगी रोकने में भी, है ना, राइट। तो एक बात समझ में आती है कि इनर्शिया जो है, प्रॉपर्टी जो है, वो वज़न से डायरेक्टली रिलेटेड है। जितना भारी वज़न उतना ज़्यादा इनर्शिया उसमें, जितना कम वज़न होगा उसमें इनर्शिया भी उतना ही कम होगा। जैसे वो कॉइन वाला था, वो 5 रुपए का सिक्का रखा था तो हमें थोड़ा ज़ोर से मारना पड़ता। अगर चवन्नी रखते सिर्फ तो हल्के से ही मार लेते कार्डबोर्ड को, तो भी चवन्नी नीचे गिर जाती थी। ज़ोर से ताकत से क्यों मारना पड़ा? क्योंकि 5 रुपए का सिक्का था, तो 5 रुपए के सिक्के का वज़न ज़्यादा होता है चवन्नी के हिसाब से, राइट। सो ये होता है इनर्शिया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया यहाँ पर पूरा हुआ, ठीक है। इस चैप्टर में इसके अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ना है।